Good morning, students. Today we are going to start with the type of continuous series. Continuous series, as I told you, that there are three types of series on the basis of construction: individual series, discrete series and continuous series. Individual and discrete series are not having any subparts. It is the continuous series that we need to discuss in detail. Continuous series basically are seen in two types: exclusive and inclusive. We did a mention of it in the previous video. Exclusive series are those, the upper limit of which is excluded in the class interval. It is given marks 5 to 10 and 10 to 15. So when it is given 5 to 10, 10 marks will be excluded from the first class and 15 will be excluded from the second class. So when we say exclusive, it means upper limit exclusive series. We exclude the upper limit from every class interval. We do not include that value. Now, inclusive series on the other hand means both upper and lower limit of the class are included. So if the class is 5 to 9, then 5 will also be included and 9 will also be included in the same class. As you can see, the next class is 10 to 14. So even though there is a continuity, no value is being repeated. So it is a clear-cut case where 9 will be included. Automatically it will be included in the first class. Where 14 will be included, it will be included in the second class, and so on. Now let us discuss how, if inclusive series is given, how we can convert it into exclusive series. We need to do that because later on in the chapter we are going to discuss the possibility of making a histogram. So for diagrammatic representation we require exclusive continuous series. ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो हमें उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? नंबर 1, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास. इसी एग्जांपल में देखिए, लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इज 10 एंड अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज 9. दोनों में डिफरेंस 1. सेकंड स्टेप, डिवाइड द डिफरेंस बाय 2. तो 1 को हमने 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 0.5. सो 0.5 को हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे इन एवरी क्लास. सो व्हाट डज इट कम टू? इट कम्स टू 4.5 टू 9.5, 9.5 टू 14.5 एंड 14.5 टू 19.5. अब यहाँ आप देख सकते हैं, it has become an exclusive series because the upper limit of the first class is the lower limit of the second class. Upper limit of the second class is the lower limit of the third class, and so on. So this is how we convert inclusive series to exclusive series. Now next we come to open-end classes. Open-end. End means it can be any, the beginning or this. There are two ends. End को normally हम last में समझते हैं, but open-end का मतलब starting भी open हो सकती है और एंडिंग भी ओपन हो सकती है. कैसे? देखिए, अगर गिवन हो लेस देन 10 तो स्टार्टिंग ओपन होगी. यहाँ पर इट इज़ एन ओपन एंड सीरीज क्योंकि इसमें स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं दे रखी, यानी लोअर लिमिट नहीं दे रखी है. लेस देन 10, सो दिस इज एन ओपन एंड सीरीज. इसी का दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है जहाँ हम देखते हैं 30 एंड अबव. अगेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन एंड सीरीज. Either lower limit of the first class or upper limit of the last group are not known or they are left open. So this is an example of the open and continuous series. Next we come to cumulative frequency. अगर हम continuous series में frequencies को cumulate करें, it shows the number of items getting a value less than or more than of a particular distribution. Less than cumulative series and more than cumulative series. ये दो तरीके से हम सीरीज को क्यूमुलेट करते हैं. सिंपल कंटिन्यूस सीरीज से अगर हमें लेसन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं. पहला हम क्यूमुलेशन करेंगे लेसन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 0 to 10 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 10 to 20 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और 20 to 30 18 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. ओके, अगर अब हमें इसे लेस देन में कन्वर्ट करना है तो लेस देन 10 3 स्टूडेंट्स के मार्क है. देखिए, 0 to 10 का मतलब लेस देन 10 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, पहला एज इट इज आ गया. ओके, लेस देन 20 तो लेस देन 20 मीन्स जिनके 10 to 20 है
7 वो भी लेस देन 20 है, और जिनके 0 to 10 है 3 वो भी लेस देन 20 है। तो 7 and 3 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 10 स्टूडेंट्स आर हैविंग मार्क्स लेस देन 20। सेम व्हाट आर वी गोइंग टू डू, लेस देन 30 में 0 to 10 वाले 3, 10 to 20 वाले 7, 20 to 30 वाले 18, ये तीनों ही लेस देन 30 में आ जाएंगे। तो 3 + 7 + 18 दैट इज 28। सो व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग, ये तो हमने स्टेप वाइज बताया, हम एक्चुअली कर क्या रहे लेसन में, वी आर ओनली एडिंग अप द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस एंड राइटिंग देम अगेंस्ट ईच क्लास। 3, 10 and 28 are the cumulative frequencies. Okay? More than cumulative frequency, the same thing, अगर इसको हम more than में convert करते हैं simple frequency को, इसी example को more than में convert करते हैं, तो यहाँ पर more than 0, then more than 10, then more than 20, then more than 30. यहाँ पर हमने more than 0 लिया, यानी lower limit ली, more than के साथ में lower limit लेके, ठीक है, 0 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, सभी के हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 28, यहाँ से हम पता कर सकते हैं। So 28 students are getting marks more than 0. How many are getting more than 10? जिनके 0 to 10 है उनको छोड़ के all are getting more than 10. तो 28 में से इनको हम माइनस कर देंगे, 0 to 10 वाले 3 को। How many are getting more than 20? Again 7 को माइनस कर देंगे, so we come to 18. Again how many are getting more than 30? इसमें से 18 को माइनस कर देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब ज़रूरत थी हमें 30 लिखने की या नहीं, ये डिपेंड करता है कि अगर हम देखना चाह रहे हैं हमने सही किया या नहीं। हमें मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के टाइम पर अगेन ये हो जाना चाहिए कि हमारा लास्ट में जो वैल्यू आए वो 0 है, तो हमने सही तरीके से मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म की है। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी को हम क्यूमुलेट लेस देन और मोर देन में ऐसे कर सकते हैं। नाउ वी कम टू क्यूमुलेटिव टू सिंपल। इसी को रिवर्स अगर करना हो, यानी अगर क्वेश्चन में हमें ये दे रखा हो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, और इसको हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, यानी अगर लेस देन 10 दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है, तो 0 to 10 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 रहेंगे। लेस देन 20 दे रखा है तो क्या करेंगे आप, 3 और 10 का डिफरेंस ले लेंगे विच इज 7, यानी 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे। लेस देन 30 ले रखा है तो 28 में से 10 को माइनस करेंगे। तो व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग, सिंपल फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए अगली फ्रीक्वेंसी में से उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम माइनस कर देते हैं, यहाँ 10 - 3 और यहाँ 28 - 10। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, आई गिव देम टू यू फॉर एक्सरसाइज, प्लीज प्रैक्टिस देम एंड सेंड मी योर आंसर्स वेयर आई टेल यू कि आपने सही तरीके से किया है या नहीं। नेक्स्ट वी कम टू द फिफ्थ टाइप ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसको हम मिड वैल्यू से अटेन करते हैं। मिड वैल्यू कोई एक्सक्लूसिव सीरीज है नहीं, हमने मिड वैल्यू का मेंशन इसलिए किया क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस में हमें मिड वैल्यू गिवन होगी और वहाँ से हमें उसे कन्वर्ट करना है कंटिन्यूस सीरीज। ओके, मिड वैल्यू पहले तो क्या होती है, लेट अस सी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो किसी भी क्लास की 2 लिमिट्स होती हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर 5 to 10 है तो 5 इज द लोअर लिमिट एंड 10 इज द अपर लिमिट। ओके, तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स द मिड वैल्यू। ये अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है मिड वैल्यू, देखिए ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए, अगर ये क्वेश्चन गिवन है तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 मिड वैल्यूज। जैसे 2 मिड वैल्यूज पहली वाली ले लें हम, 15 और 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 को किससे डिवाइड किया हमने, 2 से, क्या आया 5। जो 5 आया उसको एक बार हम मिड वैल्यू में ऐड करेंगे और एक बार मिड वैल्यू से लेस करेंगे। तो 5 में एक बार ऐड किया तो पहली क्लास की अपर लिमिट 10 आ गई और उसी की लोअर लिमिट 0 आ गई। ऐसे ही सेम हम कर सकते हैं 15 के केस में, 15 में एक बार माइनस किया 5 को, 15 में एक बार प्लस किया 5, तो नेक्स्ट क्लास आ गई हमारी 10 to 20। सो दिस इज हाउ वी अटेन द क्लासेस, और ऐसे ही हम आगे कर भी सकते हैं। लास्ट वी कम टू अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखा है तो हम उसको किस तरीके से डील करेंगे कंटिन्यूस सीरीज बनाने के लिए। अनइक्वल क्लास इंटरवल किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर आपको मार्क्स दे रखे हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40। यहाँ पर क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। क्लास इंटरवल का मतलब दोनों क्लासेस के बीच का जो
डिफरेंस है वो आपका क्लास इंटरवल कहलाता है। जैसे यहाँ 5 का है, यहाँ भी 5 का है, यहाँ 10 का है और यहाँ 20 का है, तो अनइक्वल क्लास इंटरवल हुआ। ठीक है, ऐसे में हम कंटिन्यूस सीरीज में क्या करें, देखिए जो बिगेस्ट क्लास इंटरवल है उसको ले लेते हैं। जैसे यहाँ 20 to 40 है, तो यहाँ 20 का क्लास इंटरवल है, वो ले लिया हमने, तो उसको तो एज इट इज रखेंगे। जो प्रीवियस हमें क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं उसको इस बिगेस्ट क्लास इंटरवल के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। दैट मीन्स अगर 20 का क्लास इंटरवल यहाँ लिया है तो 20 का ही हम यहाँ ले लेते हैं। तो 0 to 20 का क्लास इंटरवल अगर हमने लिया तो सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें हमने ऐड अप कर दिया, बस इतना ही किया, कोई ऐसा डिफरेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सो दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली डील विद कंटिन्यूस सीरीज इन डिफरेंट मैनर्स। अगर टाइप्स के हिसाब से देखे जाए तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव ये दो तरीके की कंटिन्यूस सीरीज हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनमें कंटिन्यूस सीरीज को डील किया जाता है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस में अगर ऐसे भी आपको कंटिन्यूस सीरीज इस फॉर्म में भी आ सकती है सॉल्व करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।